नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात, जेलेंस्की ने साइन नहीं की मिनरल्स डील। भरूच के जंबूसर में केमिकल कंपनियों से फैली बदबू, जहरीली हवा से लोग परेशान। वडोदरा के कोतरी तालाब में युवक का शव बरामद, मछली पकड़ते वक्त तालाब में डूबने से मौत। यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश तब नाकाम हो गई जब जेलेंस्की उनकी बातों से असहमत होकर उठकर चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में शुक्रवार देर रात मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब नेता एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इतने तनाव भरी बातचीत हुई। वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार फटकार लगाई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद नाराज जेलेंस्की बातचीत से उठे और तेज कदमों से बाहर निकलकर अपनी काली SUV में बैठकर होटल के लिए निकल गए। दोनों नेताओं के बीच मिनरल्स को लेकर डील होनी थी, लेकिन ये बातचीत कैंसिल हो गई है। Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. You didn't have You our invited military me- equipment. you invited If me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. गुजरात के भरूच के जंबूसर नगर में पिछले 2 दिनों से हवा में जहरीली दुर्गंध और प्रदूषण फैलने से स्थानीय लोग परेशान हैं। भरूच के जंबूसर नगर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि यह दुर्गंध आसपास मौजूद केमिकल कंपनियों से फैल रही है। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि हवा में घुली जहरीली गैस से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। उमरवाड़ा इलाके में कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आने जैसी शिकायतें हो रही हैं। કાલનો સાંજના અમને જે આ દુર્ગંધ આવતી હતી તો અમને એવું લાગ્યું કે ભાઈ કંઈ ટાયર કે વાયર બળતો હોય એવું લાગ્યું, પણ પછી અમને થોડું શંકા ગઈ કે આ ભાઈ કંપનીનું કંઈ કેમિકલ કે એવું છોડવામાં આવ્યું તો ભાઈ એ જે કેમિકલની જે સ્મેલ આવે છે તે ખરેખર બહુ ખતરનાક આવે છે અને અમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે અને માથું બી ભમી જાય છે ને કાલે પણ એવું થયું હતું ને આજે બી સાંજથી આ પ્રશ્ન ઊભો થયો છે તો હું અહીંના મામલતદાર સાહેબ ને કલેક્ટરશ્રીને અરજ કરું છું કે આની બી જે તે તપાસ કરી ને એને બંધ કરવામાં આવે। અમે સિનિયર સિટીઝન છે, અમને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ છે, એક તો વાતાવરણની પણ આવી આ
અત્યારે જે ઠંડી અને ગરમીનું જે ચાલે છે એમાં અમારા સિનિયર સિટીઝનને બહુ તકલીફ પડે છે અને અમે મામલતદાર સાહેબને પણ આ બાબતે અરજ કરેલી જ છે અમારા ફળિયાના રહીશોએ અને કલેક્ટર સાહેબને પણ અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ બાબતે જરૂરી યોગ્ય પગલાં ભરે જેથી અમને પણ રાહત રહે અને અમે ખુદ અમે ટેન્શનમાં રહીએ છીએ तो આ બાબતે ઘટતું કરે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે। गुजरात के वडोदरा के गोत्री तालाब में युवक का शव मिला है। गुजरात के वडोदरा में गोत्री तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय मनोज भाई के रूप में हुई है, जो बीते 4 दिनों से लापता थे। शव डिकम्पोज्ड अवस्था में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वडोदरा के हरिकृपा पुरानी आरटीओ के पास रहने वाले मनोज भाई लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। जानकारी के मुताबिक वह गोत्री तालाब मछली पकड़ने गए थे। उसी दौरान डूबने की वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड और गोत्री पुलिस की टीम भी पहुंची। सेकंड पीआई ने घटना स्थल का मुआयना किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात में 12वीं कॉमर्स के छात्रों के लिए 4 मार्च को होने वाले अकाउंट्स के पेपर से पहले एक अनुभवी शिक्षक ने 80 से ज्यादा अंक लाने की रामबाण टेक्निक बताई है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। गुजरात में 12वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए 4 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है। इस परीक्षा से पहले अनुभवी शिक्षक जिगर सर ने एक खास रणनीति साझा की है, जिससे छात्र 80 से ज्यादा अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि परीक्षा से पहले मिलने वाली 2 दिनों की छुट्टी का सही उपयोग किया जाए। अकाउंट्स पेपर के भाग 1 से 70 अंक के प्रश्न आएंगे, इसलिए सेक्शन ई, बी, सी और डी को 1 घंटे में पूरा करने की कोशिश करें, जबकि सेक्शन ई और एफ के लिए 2 घंटे का समय दें। शिक्षक ने यह भी सलाह दी कि सिर्फ रट्टा मारने की बजाय समझकर पढ़ाई करें और मेहनत के साथ अभ्यास करें। सही रणनीति अपनाने से अच्छे अंक पाना बिल्कुल संभव है। अभी ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया था उसके तहत ही एग्जाम कंडक्ट हो रही है आज भी। और जो नेक्स्ट कॉमर्स की जो एग्जाम होने वाली है वो कॉमर्स के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है। जो मेन सब्जेक्ट होता है उसकी एग्जाम है, वो सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स कॉमर्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जब आप कॉमर्स ले रहे हो ना तो अब अकाउंट अपनी लाइफ में कभी उसको आप दूर नहीं कर पाओगे। तो ये अकाउंट के पेपर के लिए आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी रहेगी। आपको एग्जाम में बहुत बच्चों को ये क्वेरी होती है कि सबसे पहले एक तो टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे वहां पे मिलते हैं। 3 घंटे में नॉर्मली ऐसा होता है कि अकाउंट का पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट में आप ये कर सकते हो कि सेक्शन ए, बी, सी और डी जो फर्स्ट 4 सेक्शन है वो आप 1 घंटे या फिर 1 घंटे और 10 मिनट में कंप्लीट कर लो। एंड रिमेनिंग जो हमारे पास 2 सेक्शन बचे हैं ई और एफ जो अराउंड 46 मार्क्स का है, वो रिमेनिंग 2 आवर में कंप्लीट कर लो। अगर ये प्लानिंग से चलोगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 दिन में हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। अकाउंट सब्जेक्ट में नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं कि 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, उसमें क्या करते हैं कि वो एग्जाम्पल को ऐसे रिफर करते हैं, देखते हैं सिर्फ। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रिफर करने की वजह आप उसको सम कैलकुलेशन करके अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। 2-3 दिन का टाइम है, बहुत इनफ टाइम है। हमको पता है हमारे पास 2 पार्ट है यहाँ पे बुक में, पार्ट 1 और पार्ट 2। बट अगर सिर्फ पार्ट 1 को भी फोकस कर लो ना तो उसमें से अराउंड 70-72 मार्क्स का हमारे पास कवरेज हो जाएगा। 100 में से अगर 70 मार्क्स का कवरेज कर रहा है पार्ट 1 तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इनफ टाइमिंग है 2-3 दिन का जो आप रिवाइज कर सकते हो। बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम बोर्ड की हो रही है वो एक नॉर्मली एग्जाम की तरह ही ले, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है। अब 12th में हो दैट मीन्स 1st to 12th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारी एग्जाम दी रखी है। हर साल 3-3, 4-4 एग्जाम आप देते हो, वैसे ही ये बोर्ड की एग्जाम है। बट ये याद रखना है कि जो बोर्ड एग्जाम है ना उसका जो रिजल्ट होगा ना वही आपको यहाँ पे कंसीडर करेगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एज वी नो दैट कि जब 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था ना उसमें भी लास्ट फाइनल में
सपोज पर्टिकुलर कोई क्रिकेटर खेल रहा है, MS धोनी सपोज खेल रहा है, तो वही याद रहेगा कि आपके फाइनल एग्जाम में क्या रिजल्ट है। आप स्कूल की फर्स्ट एग्जाम में क्या रिजल्ट आ रहे हो, सेकंड एग्जाम में क्या रिजल्ट आ रहे हो, वो मायने नहीं करता। आपका इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, जब ये फाइनल मैच है समझो आपकी, तो फाइनल मैच के आपको मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट होगा, लाइफ टाइम के लिए आपके पास डिग्री रहेगी जिसके ऊपर आपका स्कोर लिखा जाएगा अकाउंटिंग का। गुजरात के वडोदरा में हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस का रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया। वडोदरा शहर के हाईवे पर आज शहर ट्रैफिक पुलिस और गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। नेशनल हाईवे 48 स्थित सयाजीपुरा विश्राम गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में लेन डिसिप्लिन फॉर सेफ्टी अभियान को बढ़ावा दिया गया। सरकार की नई योजनाओं के तहत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों को गोल्डन आवर यानी पहले घंटे में अस्पताल पहुंचाने की महत्वपूर्णता पर जानकारी दी गई। इसके अलावा शराब पीकर ट्रक या बस न चलाने, सुरक्षा लेन में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया गया। માર્ગ સલામતી માસ 2025ના ભાગરૂપે વડોદરા શહેર પોલીસ માર્ગ સુરક્ષા અંગેની કેટલાક કાર્યક્રમોની આયોજન કરી છે અને આના ભાગરૂપે આજે વડોદરા શહેરના જ્યુરિસ્ડિક્શનમાંથી પસાર થતી 45 કિલોમીટર લાંબી નેશનલ હાઈવે અને 10 કિલોમીટર લાંબો નેશનલ એક્સપ્રેસવે ઉપર ચાલતા ભારે વાહનો લેન ડિસિપ્લિનનું પાલન કરે તો વાહન અકસ્માતો બનતા અટકાવી શકે, આ દિશામાં આજે એક પ્રયાસ કરી છે। તો દરેક ભારે વાહનના ડ્રાઈવર સાથે સાથે અન્ય વાહન ચાલકો લેન ડિસિપ્લિનનું ચુસ્તપણે પાલન કરતા થાય તો આવા અકસ્માતો સર્જાતા આપણે અટકાવી શકીએ। તે માટે આજથી વડોદરા શહેર પોલીસ આજુબાજુના શહેર જિલ્લાઓ સાથે સંકલન કરીને એક અભિયાન શરૂ કરી છે, જેમાં ટ્રક ડ્રાઈવરો અને ભારે વાહનના ચાલકોને એક જનજાગૃતિ કરીને લેન ડિસિપ્લિનનું પાલન કરે, પોતપોતાના લેનમાં ચાલે તો ઓવરટેકિંગ વખતે કે નોર્મલ મૂવમેન્ટ વખતે અકસ્માત ના સર્જે અને આપણા રોડ સેફ રોડ બને, આ માટે આપણા પ્રયત્ન કરી છે। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। इमर्जिंग बिजनेस अवार्ड 2025 में गुजरात के चंद्रिकायार और मानवेंद्र जी गोहिल को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित इमर्जिंग बिजनेस अवार्ड 2025 में गुजरात के दो प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। चंद्रिका आयरे को श्रेष्ठ महिला नेतृत्व के तहत इमर्जिंग एंटरप्राइज अवार्ड मिला, जबकि मानवेंद्र जी गोहिल को श्रेष्ठ इमर्जिंग एंटरप्राइज क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड BWSME वर्ल्ड के सहयोग से आयोजित किए गए थे और यह उन व्यवसायियों की उपलब्धियों को पहचानते हैं जो नवाचार, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में योगदान दे रहे हैं। हमारा ये वडोदरा में कंपनी है, सर्च फर्म है। इस हाल ही में दिल्ली में हमें इस साल का बिजनेस वर्ल्ड का MSME सेक्टर का वुमेन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। हमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि हम विमेन मेजॉरिटी या विमेन लेड एंटरप्राइज ऑफ द ईयर है। हमारे करीब 900 नॉमिनेशंस थे, जिसमें से 32 विनर्स घोषित किए गए थे, जिसमें हमारा नाम था। हम डाइवर्सिटी यानी कि महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनको प्लेस हायरिंग में हमारा योगदान रहा है। साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो महिला प्रधान है, उसमें 90% जो है वो महिलाएं काम करती है, जिसमें से माएँ है जो जिनके छोटे बच्चे हैं। हमने ऐसे एक एनवायरनमेंट उनके लिए बना रखा है जिससे वो कई सालों तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। ये कंपनी है जो मैंने यहाँ बड़ौदा में शुरू की है और हाल ही में मुझे बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से दिल्ली में एक अवार्ड मिला है इस कंपनी के द्वारा। और ये कंपनी में हम लोग डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं। 4 समुदाय के लिए LGBTQ जो समुदाय है, जो समलैंगिक है, किन्नर है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनके ऊपर। दूसरा कि महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। तीसरा हम लोग PWDs जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है उन पे काम कर रहे हैं और वॉर वेटरन्स पे काम कर रहे हैं। तो ये अवार्ड मुझे मिला है इन समुदाय में सोशल चेंज यानी कि सामाजिक बदलाव जो हम ला रहे हैं इस कंपनी के द्वारा, उसके लिए मिला है। गुजरात के वडोदरा के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में खास संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हर साल की तरह इस साल भी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में अभ्यास करने वाले छात्रों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यह कार्यक्रम इस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है जिससे वे अपने अभ्यास के बाद बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो सके। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम संगीत में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का एक जरिया बनता है।
इस मौके पर 5 साल से संगीत सीख रहे छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर जानी मानी गायिका वत्सला पटेल चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित रहीं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे जो बच्चे 5 साल तक यहाँ तपस्या करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो सीखते हैं, तो लास्ट ईयर जैसी MPA मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चे को लास्ट ईयर में ये फॉर्म परफॉर्म करना पड़ता है और गुरु के तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि ठीक है, अब आप कहीं भी जाके गाने बजाने लायक हो गए हैं। इसको हम सभा गायन बोलते हैं। जो बच्चे आज और कल 2 दिन से निरंतर इनका कार्यक्रम चल रहा है और फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ये हर विधा वाले सब लोगों का ऐसा गायन वादन सभा खंड में हर साल ये कार्यक्रम होता है। द MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आज 2 दिन से सभा गायन का प्रोग्राम चल रहा है और इसमें सब मास्टर के यानी जो यहाँ से अभी उनका मास्टर पूरा होगा तो उनको एक कैसे स्टेज पे गाया जाता है इस उनको सबक मिले, इस वजह से हम हर साल फाइनल ईयर के मास्टर के बच्चों का ये प्रोग्राम करते हैं। गुजरात के वडोदरा में विलुप्त हो रहे अखाड़े को पुनः जीवित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा में विलुप्त हो रहे अखाड़े को पुनः जीवित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय की मंत्री रक्षा निखिल खड़से वडोदरा दौरे पर पहुंची। उन्होंने शहर के 3 से 4 अखाड़ों का विजिट किया और उनके इतिहास और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही अखाड़ों के चलन को फिर से पुनः जीवित कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया। आज मेरा यहाँ पे प्रोग्राम था। हमारे यहाँ के सांसद हेमंत भाई जोशी, उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में यहाँ पे बुलाया है कि जो हमारा वर्ल्ड चैंपियन टेबल टेनिस का यहाँ पे आज कंपटीशन फाइनल है और वहाँ का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और उसके साथ ही जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रोग्राम के लिए मैं आई थी तो तब मुझे यहाँ पे पता चला था कि यहाँ पे मतलब पहले से पता है कि यहाँ पे गायकवाड़ फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुद महाराष्ट्र से आती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज यहाँ पे है और बचपन में पढ़ा भी था और फिर तब मुझे अखाड़ों के बारे में भी पता चला और खुद मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी आके विजिट करना चाहिए। काफ़ी हमारे महाराष्ट्र लोग भी यहाँ पे है और अखाड़ा एक हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो उसे अच्छा और बनाने के लिए हमारी तरफ से क्या मदद हो सकती है, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए आज जितने 4 अखाड़े यहाँ पे बड़ौदा में है जो मेरी जानकारी में है, तो अभी पहला अखाड़ा मैंने विजिट किया है, अगले 3 अखाड़े भी विजिट करने हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि जो संस्कृति हमारी रही है अखाड़े को लेके और सबसे अहम बात कि वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, तो वो मेरा कर्तव्य है कि उसे आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं। देखो अभी केंद्र सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में अभी काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे अपने कोच की बातें की तो अभी हम उसके लिए भी पॉलिसी बना रहे हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक सिलेबस भी हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से स्पोर्ट्स साइंस है, न्यूट्रिशन है, कोचेस है
स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है, इस सेक्टर में अभी केंद्र सरकार काम कर रही है, क्योंकि आपने जो कहा कि 2036 में ओलंपिक इंडिया में आने वाला है और उसके लिए हमारे हर राज्य में से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही उतनी मैन पावर, प्रोफेशनल तरीके से हमारे पास कोचेस, अभी जिस तरह से वर्ल्ड का मेजरमेंट हो रहा है, मतलब स्पोर्ट्स में जितना भी मेजरमेंट होता है कि किस तरह से हमारे कोचेस चाहिए, किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह से हमारे एथलीट्स डेवलप होने चाहिए, इसके लिए हमें प्रॉपर मैन पावर की ज़रूरत है। इसलिए मैंने जो बोला कि अभी हम आगे चल के कोर्सेज भी इसमें शुरू कर रहे हैं कि 2036 तक हम वो पूरा कल्चर, पूरा एनवायरनमेंट हम स्पोर्ट्स का हर जगह, हर राज्य में हम कर सकें। देखो जैसे खो खो है, कबड्डी है, अभी हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो IOC है, मतलब ओलंपिक एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड का है, उसमें कई पॉलिसीज रहती है, उसमें कई टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, तो जैसे जैसे सॉर्ट आउट होते वैसे वैसे हम एक एक गेम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि जैसे खो खो भी हम बात कर रहे हैं कि अभी एशियन गेम में उसका समावेश होना चाहिए, धीरे धीरे हम कबड्डी को भी लाएंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि उस लेवल तक हमारा जाना जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे हम खो खो की बात करते तो अभी लगभग खो खो हमारे 40-45 कंट्रीज में अभी पहुंच चुका है। अगर कोई भी गेम हमें ओलंपिक तक पहुंचाना है, हमारा ट्रेडिशनल गेम, तो वो वर्ल्ड वाइड भी उतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना कोचेस, उतने वहाँ पे खेलने वाले एथलीट्स भी होने चाहिए। तो जैसे जैसे एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे गेम्स भी हमारे ट्रेडिशनल उसमें जा रहे हैं। लोहाड़ा इंटरनेशनल बिजनेस फोरम GCC कॉलिंग 2025 के तीसरे प्री मीट का आयोजन किया गया। लोहाड़ा इंटरनेशनल बिजनेस फोरम GCC कॉलिंग 2025 की तीसरी प्री मीट का आयोजन आज वडोदरा में किया गया। इस दौरान आगामी बिजनेस मीट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यह बिजनेस मीट अप्रैल महीने की 13 से 16 तारीख के बीच दुबई में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें फोरम के चेयरमैन सतीश भाई विठलानी सहित समाज के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपति शामिल हुए। LIBF GCC कॉलिंग 2025 13 થી 16 એપ્રિલ દરમિયાન હોટેલ મોવેનપિક દુબઈ ખાતે થવા જઈ રહ્યું છે। આનો ઉદ્દેશ્ય છે એ 37 કન્ટ્રીની અંદરથી જુદા જુદી વેપાર સાથે પ્રોફેશનલો તેમજ એન્ટરપ્રેન્યોરો અંડર વન રૂપ ભેગા થાય, જુદા જુદા સબ્જેક્ટ પર વાર્તાલાપ થાય, નોંધ લેવાય, નોલેજ શેરિંગ થાય। યુથ માટે સેપરેટલી 9:30 થી 11:30 રાતના ડેલી લોકોની જુદી મીટ ગોઠવી છે। યુથ એટલે 18 થી 40 વર્ષની ઉંમરના યુથ માટે। આ બધો જે પ્રયાસ જે છે બેઝિકલી એ ટુ યુનાઇટ જે જુદા જુદા વર્લ્ડની અંદર જુદા જુદા ઉદ્યોગમાં રહેતા જે લુહાણાઓ એકબીજા સાથે જે સંપર્કમાં ન હોય એમને સંપર્કમાં લાવવા, એકબીજા સાથે ધંધોનો વિકાસ થાય, એકબીજાથી વિકાસ થઈ શકે અને ઇવન જોબ્સ ક્રિએશન આ થકી જુદી જુદી કંટ્રીઓમાં ને ખાસ કરીને ઇન્ડિયાની અંદર બી ઘણી મોટી કંપનીઓ લુહાણાઓની છે અને બીજી બી કંપનીઓ છે જ્યાં આગળ લુહાણાઓનો બહુ મોટો હાથ છે કે મોટી પોસ્ટ પર છે। એ બધી કંપનીઓની અંદર જોબ્સ આપણે આપી શકીએ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।